ये एक बहुत बड़ा इशू है व्हेन इट कम्स टू 3D एनिमेशन एंड लाइक मैं ये बोलूँगा कि ये मूवी में if the climax had not worked this movie would have flopped. I will yeah, it would not have worked at all. Yeah, the second half is clearly much better than the first one. Of I'll say course. this goes in opposite directions. For me, writing wise, the first half worked and the second half didn't work for me. And animation wise, exact opposite. First half didn't work for me. Second half worked, except for the Prahlad sequences. गॉडफादर नहीं देखी तूने? वो तो इसको आर्ट लगा होगा. केसरिया तेरा इश्क है मेरा. This guy is making us fall in love with the film even more. Welcome back to Desi Deep Dive. Wait. Okay. We have to start this video properly. ओम नारायण 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 नारायण. Yes. सभी दोस्तों को प्रणाम. स्वागत है आपका. हम आज चर्चा करने वाले हैं निर्देशक अश्विन कुमार द्वारा बनाई गई पिक्चर महाअवतार नरसिम्हा के बारे में. ये होमबाले फिल्म्स द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करी गई है और थिएटर में ये बॉलीवुड की मार रही है. I feel this is a victory. This entire movie is a victory for independent filmmaking, where there was a person who actually had a vision कि भाई मुझे ये मूवी बनानी है और he dedicated 5 years of his life. He partnered with his wife. The wife is the producer and they put their own money. They made it and they took a big risk, by the way, of making this an animation movie क्योंकि इंडिया में animation scene वैसे ही dead था. Yeah. तो it was a very very big This gamble. is how it all works. Somebody comes, somebody takes a risk, that risk pays off, and then everyone starts to invest in that. I very much appreciate the effort. I very much salute the 5 years this man and their family have dedicated. क्योंकि मैंने वो एक्चुअली इंटरव्यू भी देखा था प्रतीक के साथ जिसमें द गाय सेड कि उन्होंने अपने घर भी गिरवी रख दिए थे in getting loans for this particular Yes, movie. yes. That is commendable, man. That is truly commendable, and this is true dedication to the craft, that someone who's willing to take this kind of a step. Kyunki I remember even Prashant Neel did something like this while making the first Ugram, which was eventually the basis for Salar. But वही है कि unfortunately for him at that time he did not get the required appreciation or the financial returns. But it's good to know that there is a happy ending to his story कि he made KGF and then things took off for him. It's a good thing that यहाँ पे अश्विन कुमार के लिए this gamble paid off. Basically, this was a gamble, and this gamble has paid off, and this has kind of started the animation scene as well as started this entire cinematic universe, which I am very much in support of. Having said all of that, one appeal is please change the art style. I hated the animation. I'm sorry to say. This entire look and feel, ये इसको देख के it was very clunky, very sloppy. I'm not saying the entire thing. कुछ portions were genuinely beautiful. Of course, the entire Narasimha episode amazing. दिख गया था कि सारा पैसा इसी में गया है. Let's start with the animation. No? Let's start by talking about the animation, and let's just say what was great, because वो अपने actually count कर सकते हैं. Right from the beginning, I think एक तो ये बजट एलोकेशन इसमें बहुत अच्छा है. दे अंडरस्टैंड कि ओके ये बहुत बड़ा सीक्वेंस होने वाला है, लेट्स एलोकेट द बजट ओवर हियर, एंड दे हैव स्पेयर्ड नो एक्सपेंस. ओके, लाइक जब वो फर्स्ट फाइट आता है, वराह अवतार होता है ना, यू सी POV शॉट्स फ्रॉम प्लैनेट्स ऑफ दैट फाइट. ओके, दे स्पेयर्ड नो एक्सपेंस. दे वर लाइक ये चाहिए तो ये चाहिए, एंड दिस विल लुक गुड, एंड इट लुक्स गुड. It looks plausible. It actually looks really good. मैंने सब देखा नहीं है कभी इंडियन एनिमेशन सीन में कि किसी का इमेजिनेशन उस लेवल पे गया हो कि चलो ये करते हैं. राइट, दिस इज लाइक गोइंग वाइल्ड इन दैट राइटर्स रूम कि ये कर लेंगे, ये भी हो जाएगा. राइट. Then there is the Mother Earth sequence, जो भूमि होती है. भूमि, वो that भूमि का song sequence, amazing. It was amazing. Beautiful. Even the sequence where Hiranyakashyap is getting the boon. Yeah. And the rocks are forming. Okay, again, such great imagination and then execution. जहाँ पे when you see the individual hair on Hiranyakashyap, it's एक shot है, मुझे थोड़ा odd लगा वहाँ पे कि एक पीछे से देखते हैं ना तो सब बाल उसके सफ़ेद दिखते हैं अपने को,
एंड देन हाँ. देयर इज आगे का शॉट जहाँ पे काले हो जाते हैं. ठीक है, वो सब आई अंडरस्टैंड, आई कैन लेट गो ऑल ऑफ दैट बिकॉज अगेन जस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट वी आर सीइंग इज सो क्रेजी कि इस Yeah. स्केल पे उन लोगों ने ये सब पुल ऑफ किया है. आई लव दैट. देन देयर इज द आई थिंक द नरसिम्हा सीक्वेंस एट द एंड. नरसिम्हा तो ऑब्वियसली सी ऑफ कोर्स दे हैड टू स्टिक द लैंडिंग ऑन दैट, क्योंकि अगर वो अच्छी तरह से नहीं करते ना तो ये पूरा मूवी डूब जाता. यस यस. तो उसमें तो दे स्पेयर्ड नो एक्सपेंस एंड दे वेंट एब्सोल्यूट क्रेजी कि जितना एक्सट्रीम जा सकते थे दे वेंट देयर. एंड आई वेरी मच अप्रिशिएट कि दे डिड नॉट होल्ड बैक, दैट दे डिड नॉट सेंसर एनीथिंग, दे डिड नॉट फील दैट मे बी कि अरे बच्चों की अगर बच्चों को दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा वायलेंस को टोन डाउन करें. नहीं, दे वेंट फुल ऑन. when वराह अवतार he kills हिरणाक्ष, वो उसकी आंख बाहर आ रही है, वहीं से पता चल जाता है हाँ, कि they are हाँ, not हाँ, sparing हाँ. any. हाँ, वो करेंगे ही. So नहीं, बट इट वेरी मच फेल्ट लाइक मैं मॉर्टल कॉम्बैट का फेटालिटी सीक्वेंस देख रहा हूँ. क्योंकि वो उस लेवल पे जाते हैं कि भाई कट रहे हैं, खत्म हो रहा है, ही इज बीटिंग देम, ही इज ब्लास्टिंग देयर स्कल्स, कट रहा है पूरा, वो उनका सुदर्शन चक्र टाइप जो है वो पूरा जा रहा है, और वो एकदम देयर इज एंटायर ब्लड व्हिच इज बीइंग इट वाज ब्रूटल. एंड हाँ, प्ले आई मीन करस्पॉन्डिंग टू दैट वो जो पीछे गाना भी है ना, तो गाना भी ऐसा चल रहा है कि यू आर फीलिंग दैट फ्यूरी की रैम्पेज चल रहा है पूरा. देयर आर सम सीक्वेंसेस विच, जैसे आई फेल्ट अ सिमिलर काइंड ऑफ वाइब इन दैट. Sorry to bring up Pushpa again, that climax of Pushpa, that climax fight of Pushpa where he's on that rampage and he's just going and पीछे वो गाना बज रहा है ना, so it was in the same vibe, but since it is an animated format यहाँ पे it works better, Yeah. much better than that. So this is the format which they are playing with, and which is why I appreciate कि ठीक है इन लोगों ने इस पर्टिकुलर स्टोरी को एनिमेटेड फॉर्मेट में बताने को बोला, एंड दे आर गोइंग टू प्रोग्रेस फर्दर इन दिस यूनिवर्स एंड स्टे इन द एनिमेटेड वेन, बिकॉज आई विल टेल यू this kind of heightened reality and surrealism is only possible in animation. yes. अगर ये रियल दिखाते ना तो it wouldn't have worked, I Also, feel. when we were kids, these stories were filtered a lot when they reached us. Maybe, I don't know, मेरे को तो Okay. नहीं मिला, मेरे को तो Censor- unfiltered ही मिला था. censor wise I'm saying, जो brutality मैंने इसमें देखी है, हाँ, I was never told the story like that. okay. Okay, Okay. so when I बट when I मुझे saw- इतना तो पता है यार, मुझे इतना तो पता है कि नरसिम्हा का मैंने इमेज देखा है ना, Yes. उस इमेज में Yeah. हिरण्यकश्यप का वो तो मुझे पता है, दैट इज अ Yeah, वेरी yeah, फेमस yeah. इमेज. Yeah. So you know the brutality of it, you can imagine the brutality, but basically we were exposed to these stories from our during our generation. या तो तुम कोई वो देखते थे, या तो तुम कोई नाटक देखते थे, या तो तुम टीवी सीरियल में देखते थे. बहुत कम मूवीज बनी है. साउथ इंडिया में बनी है, साउथ इंडिया में देयर हैव बीन मूवीज बेस्ड ऑन नरसिम्हा एंड प्रहलाद. इट हैज़ बीन मेड. बॉलीवुड ने तो नहीं बनाया, क्योंकि ऑफ कोर्स बॉलीवुड हम जानते हैं क्यों बनाएगा, वो तो चला गया था, उसका तो I अलग ही actually एजेंडा था. looked it up. There are films that are sort of derivatives, or sort of there are characters that have been based on Prahlad or sort of draw parallels from him. So one of the films that showed up in my research was it was a Kamal Hassan film. I don't Which movie? remember. I'll have to look it up, but Kamal Hassan film showed up in that whole thing. So I was a little fascinated. Ki okay, I'll tell you which one. Anbe Sivam. Anbe Sivam is Anbe not Sivam? based on, but no, No, it's not based on it. It's not based on it. मतलब कुछ derivatives है, कुछ parallels you can draw. There is no parallels in that movie. नहीं That है is a इसमें? completely communist propaganda movie. Okay. So I've वो not seen पूरा that, अलग so. है. हाँ, वो पता है मुझे, मैं से बता रहा हूँ ना, आई हैव सीन दैट मूवी. इट्स अ फुल कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा मूवी. Okay. वो तो लिटरली उसमें बताता है, वो तो बोलता है, एक पूरा इंटरेक्शन है बिटवीन कमल हासन एंड माधवन, जिसमें वो कम्युनिज्म को डिफेंड कर रहा है बैठ के. कमल हासन वो कम्युनिज्म क्या होता है वो बोल रहा है कि यही तो कम्युनिज्म है. मैंने कहा तू बता दे, थप्पा लगा के बता दे. तो वो तो पूरा कॉमी मूवी है वो तो. जैसे प्रतीक बोल रहा था ना KGF को कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा, अनवे शिवम को देख के तो सर चकरा जाएगा उसका. Maybe उसने बोला हो, I don't know. So let's get back to Mahavatar Narsimha. Yeah, okay. So we were talking about like the
the good things about the animation. Like we have covered, of course, we will continue to talk about the good things when we are talking about particular sequences. The main problem I have is the entire art style looks very plastic. All the human characters and they don't look convincing to me. That of course they have improved the technology of hair बहुत अच्छी तरीके से बना है, हेयर की रेंडरिंग बहुत अच्छी करी है, बट व्हेन इट कम्स टू द फेस इट लुक्स वेरी आर्टिफिशियल एंड वेरी जैसे वही खिलौने ना, इट लुक्स लाइक कि मैं ऐसे खिलौने देख रहा हूँ, ये ना आर्टिफिशियल खिलौने, ऐसे मैं खिलौने देख रहा हूँ. तो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि ये एक inherent problem है of animation as an art form itself, especially 3D animation. So our human eye, I'm going to go a little technical. So our human eye, even though everybody is human eye, not just someone who understands कि ये animation वगैरह क्या होता है, एक आम इंसान भी ना अगर कोई fake human face को देखेगा तो समझ जाएगा कि ये कुछ गड़बड़ है. उसको समझ में नहीं आएगा कैसे, उनको समझ में नहीं आएगा क्या बताऊं, क्यों फेक है, कुछ गड़बड़ है, क्या है पता नहीं चलेगा, बट वो देख के समझ जाएंगे कि क्या है. बिकॉज हमारी जो ब्रेन है ना वो काफ़ी टाइम से इट हैज़ बीन ट्रेंड, उसको आदत है एक नॉर्मल ह्यूमन चेहरे को विद प्रॉपर प्रोपोर्शंस देखने की, विच इज़ वाई व्हेन वी सी समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी द ब्रेन ऑटोमेटिकली पिक्स अप ऑन इट और बोलता है, तेरे को सिग्नल देता है कि अरे दिस इज वियर्ड. तभी तेरे को ऐसा लगेगा कि तू कभी फैन जो मूवी है शाहरुख खान की, उसमें तू उसकी डीएज वाली जो शक्ल है, जो दो गौरव का कैरेक्टर है, उसकी शक्ल देख बड़ा वियर्ड लगता है. यस क्योंकि वो डीएच किया है जानबूझ के, उसको डिजिटली ऑल्टर किया है, बट इट डज नॉट लुक लाइक अ रियल फेस. तो काफी लोग ना उसमें कमेंट्स करते थे कि भाई ये क्या है, ये तो ऐसा लग रहा है प्लास्टिक की शक्ल है. दे आर नॉट एबल टू टेल एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, बट दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज इट बिकॉज ह्यूमन माइंड को पता है कि असली ह्यूमन फेस कैसा दिखता है. तो विच इज वाई इन 3D एनिमेशन क्या होता है कि इफ यू आर ट्राइंग टू मेक अ रियलिस्टिक फेस या एक ऐसे फेस बनाना चाह रहे हो, वो नहीं बनेगा बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल. हमारा जो फेस है ना, एक ह्यूमन फेस हैज सो मच वेराइटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड इट मूव्स इन वेज हमें भी नहीं पता. इट इज वेरी एक्सप्रेसिव. तो उसको ना तुम डिजिटली कैप्चर करना बहुत मुश्किल है. आर्टिस्ट्स हैव स्ट्रगल्ड एक्सट्रीमली हार्ड. द एग्जाम्पल इज, जैसे उन लोगों ने टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव कर ली कि अगर तुम एक 3D मॉडल फेस का, हाई क्वालिटी 3D मॉडल एक स्टैटिक फोटो में देखोगे, वो तुम्हें लगेगा कि बहुत रियलिस्टिक है, बट जैसे वो मूवमेंट में आएगा ना पता चल जाता है कि नहीं ये कुछ गड़बड़ है. द बेस्ट एग्जाम्पल इज इफ यू हैव सीन स्टार वॉर्स रोग वन, मुझे पता तूने नहीं देखी, बट रोग वन, चल मैं तेरे को फास्ट एंड फ्यूरियस का एग्जाम्पल बाद में दूंगा, पहले रोग वन की बात करते हैं. एंड कीप दिस, डोंट कट दिस पोर्शन. रोग वन में क्या होता है, दे कास्ट 2 कैरेक्टर्स हु आर एक्चुअली नॉट विद अस इन रियल लाइफ एनी मोर. सो उन लोगों ने क्या किया था, 3D में उनकी डीप फेक बनाई थी शक्ल की, और उन एक्टर को वापस वो 3D मॉडल से लेके आए थे वापस इस मूवी में. तो वो क्या था कि इट लुक्ड वेरी फेक, इवन दो द टेक्नोलॉजी वाज सो एडवांस कि दे वर एबल टू क्रिएट वेरी रियलिस्टिक फेशियल एक्सप्रेशन, सब कुछ कर पाए थे, बट स्टिल इट डिड नॉट फील 100% ट्रू. सबको लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, एंड इट वॉज हैवीली क्रिटिसाइज्ड. ओके, फास्ट एंड फ्यूरियस का एग्जाम्पल, टू द मूवी वेयर बेसिकली पॉल वॉकर अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे, एंड पॉल वॉकर के जो फाइनल मूवी थी उसमें दे हैड टू यूज डीप फेक्स टू फिल द पोर्शंस एंड फिनिश हिज पोर्शंस. बट तू उसकी शक्ल देखेगा तेरे को लगेगा कि ये फेक है. I'll tell you the example I was going to bring up was Polar Express. उसमें वो तो है, बहुत लगता हाँ. है. Okay. वो that was heavily criticized, heavily criticized. Yes, for the animation. मुझे यहाँ पे वही फील आई. Yes, उसको वहीं पे पोलर एक्सप्रेस के बाद ही वो अनकैनी वैली करके जो एक टर्म है ना वो फेमस हुआ था बहुत ज्यादा, कि ये अनकैनी वैली है. इवन उसमें रॉबर्ट जेमेकिस ही वांटेड टू ट्राई समथिंग वेरी यूनिक, ही वांटेड टू मेक एन एंटायरली CGI फिल्म एंड ही डिड इट. बट प्रॉब्लम ये हो गई थी, ही कास्ट दोस लाइक ही कास्ट रियल एक्टर्स, टॉम हैंक्स वगैरह को लिया था, एंड उनको CGI में जब वो पूरा बनाया था ना, पीपल वर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट. दे वर लाइक ये बहुत गंदा लग रहा है, ये बहुत फेक लग रहा है. तो तभी तू देखेगा 3D में जब भी कोई एनिमेशन बनती है, ऐसे CGI टाइप की कुछ एनिमेशन बनती है ना, हमेशा ह्यूमन कैरेक्टर्स नहीं होंगे. हमेशा क्या होगा, द फेस विल बी एन एलियन और एन एनिमल और समथिंग एल्स. तो तू, दैट इज वाई थैनोस वर्क्स, हल्क वर्क्स, Caesar works. Caesar works, exactly. But now
रिमेंबर दैट मूवी स्कॉर्पियन किंग, जिसमें वो वाली मूवी थी जो मम्मी वाली मूवी में स्कॉर्पियन किंग आता है, उसमें जो वीएफएक्स था उसकी शक्ल का, इट इज सो बैड, इट इज सो बैड. तो यही प्रॉब्लम होता है टू हैव CGI एंड 3D जिसमें तुम एक इमोटिव फेस को यूज कर रहे हो. दैट इज वाई पिक्सार जो करता है, पिक्सार का एक यूनिक स्टाइल है. पिक्सार की मूवीज में अगर ह्यूमंस आते हैं तो उनका ना बहुत ही एग्जैजरेटेड स्टाइल है, बिकॉज वो तभी अपनी ब्रेन उसको रिकग्नाइज कर लेता है कि ओके दिस इज नॉट, वी आर नॉट वॉचिंग रियल लाइफ, वी आर वॉचिंग समथिंग हाइटेंड. जब पिक्सार ने पहली मूवी बनाई थी टॉय स्टोरी, इट वॉज अबाउट टॉयस, इट वॉज नॉट अबाउट ह्यूमंस. उसमें जो ह्यूमन आता है एंडी, तो वो जो कैरेक्टर है उसका शक्ल हम कभी देखते नहीं है प्रॉपरली, बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मेक अ ह्यूमन कन्विंसिंगली. तो ये चीज़ जो है ना, ये एक बहुत बड़ा इशू है व्हेन इट कम्स टू 3D एनिमेशन. एंड लाइक मैं ये बोलूँगा कि ये मूवी में if the climax had not worked, this movie would have flopped. It would not have worked at all. Yeah, the second half is clearly much better than the first one. I'll say this goes in opposite directions. For me, writing wise, the first half worked and the second half didn't work for me. And animation wise, exact opposite. First half didn't work for me, second half worked, except for the Prahlad sequences. Let's talk about Prahlad. Yes. Okay, so Prahlad क्या है? I will say another thing, that some stories they are good to listen to. उनको सुनने में अच्छा लगता है, उनको पढ़ोगे तो अच्छा लगता है, बट उनको तुम मूवी फॉर्मेट में अगर देखोगे ना तो वो वर्क नहीं करता. प्रहलाद की जो स्टोरी है, इट इज़ लाइक दैट, बिकॉज प्रहलाद की जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ना, देयर इज नो प्रोग्रेशन. Because here, okay, I'll tell you what you are trying to say in like technical terms thoda. Okay, here there are three primary characters. One is Hiranyakashyap, second is Prahlad, and third is Lord Vishnu. Yeah. Okay, and this film tries to be about all of them, right? The problem is the tone has to shift and the pacing has to shift to introduce certain characters. So No. as soon as जो तू बोल रहा है, that is a very different thing from what I'm saying. नहीं, मैं क्या I'm बता रहा getting हूँ? to it. I'm getting to it. Okay. Is what I'm saying. ठीक है, ठीक है. हाँ. So my problem is that when you tell this tale, when you adapt it, जो भी ये हुआ है, जब तुम adapt करते हो, you have to put primary focus on tonality and theme, right? It has to be about something. And I was thinking about another film as to why it works. And when I saw Infinity War for the first time, I was like, okay, how have they managed to make it all work? For me, it was about Thanos. The entire film is about Thanos. ठीक है? No, none of the Avengers take center stage for me in that film. Sure, they have moments, but the film is about Thanos, and that is why it works solely for me. ठीक है, यहाँ पे if this film was about Hiranyakashyap, because it sets out to be 40th minute mark पे Prahlad enters. Yes. Right. That is one problem. My second problem is because what you are saying, Prahlad is not a proactive character. He cannot be. Exactly. His existence relies on a third character, Lord Vishnu, who is the proactive character at the end. Right. He's just there in the background constantly throughout the film. बीच में आते हैं एक दो बार, but end में he culminates into that avatar, Narsimha avatar, right? So again, this movie is structured so in like it's a tale being told to you that it does not really is a good screenplay. It's not a good screenplay, I would say. एंड मैं वही बताना चाह रहा था कि जैसे जो प्रहलाद की जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, इट इज जस्ट द सेम. Yes. कि इट्स जस्ट, आई मीन क्या होता है ना, यूजुअली स्क्रीन प्ले, हाउ डज अ स्क्रीन प्ले वर्क? अ स्क्रीन प्ले ओनली वर्क्स बेसिकली, हर सीन का एक पॉइंट होना चाहिए कि एक सीन आया, उसकी वजह से द कैरेक्टर, उसकी जर्नी थोड़ी आगे बढ़ी, फिर नेक्स्ट
इट लीड्स इन टू द नेक्स्ट सीन, फिर वहां से कुछ हुआ, या तो क्या होगा, या तो द आउटकम विल बी पॉजिटिव या तो द आउटकम विल बी नेगेटिव, उसकी वजह से फिर कैरेक्टर में कुछ और बदलाव आएगा, जिसकी वजह से ये कुछ एक्शन लेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर वही कि समथिंग वर्क्स इन दैट कैरेक्टर्स फेवर या उसके ऑपोजिट जाएगा। प्रहलाद के साथ क्या हो रहा है? प्रहलाद का क्या है कि ही इज इन लव विथ विष्णु, ही हैज आर्डेंट डिवोशन टू लॉर्ड विष्णु। ठीक है, हमको ये इंफॉर्मेशन मिल गया। अब हमको क्या है कि वी हैव टू नाउ गेट कन्विंस्ड दैट ओके हिज डिवोशन गेट्स रिवॉर्डेड। ठीक है, नाउ फॉर मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल स्टोरी, आई एम गोइंग टू कीप दिस असाइड, बट इन टर्म्स ऑफ अ स्क्रीन प्ले मेरे लिए ये होना चाहिए कि ही इज़ अ डिवोटी, ही इज़ एन आर्डेंट डिवोटी एंड हिज डिवोशन नीड्स टू फर्स्ट गेट चैलेंज्ड मेरे हिसाब से। इवन दो एवरीवन, जो भी उसके आसपास के लोग हैं, सब उसको बोल रहे कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, दे आर ट्राइंग टू फोर्स हिम टू लीव विष्णु भक्ति, ही इज नॉट, ही इज रिफ्यूजिंग टू डू सो। बार बार ही बोल रहे कि अरे विष्णु क्यों आएंगे तेरे लिए, विष्णु क्यों आएंगे तेरे लिए, बार बार यही बोले जा रहे हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। बट द प्रॉब्लम इज एट एवरी स्टेज ही इज गेटिंग सेव्ड। Yeah. And It's he called also plot knows it. armor. He has plot armor. He has plot armor, he has literal plot armor from Yes, the god. yes. But वैसे बोल रहा हूँ कि वो plot armor उसको है and he is not even, I mean he is also aware of it. It's not that कि प्रहलाद को भी पता नहीं है कि शायद भगवान इसको बचा नहीं रहे, उसको भी पता है कि भगवान बचा रहे हैं उसको। तो मेरे लिए ये है कि उसका कैरेक्टर प्रोग्रेशन क्या हो रहा है। द ओनली कैरेक्टर मोमेंट जहां मेरे को दिखा कि शायद प्रहलाद का कुछ इफेक्ट हो रहा है इज व्हेन ही गेट्स सेव्ड बाय समुद्रदेव, एंड समुद्रदेव बोलते हैं कि एक बारी तू बुला तो सही विष्णु को, तेरे को क्या लग रहा है कि सिर्फ तू बैठा हुआ है उनसे मिलने के तरस में, वो भी तुमसे मिलने के लिए तरस रहे हैं करके ही सेज। एंड देन प्रहलाद गोज ऑन अ मोनोलॉग की मेरे लिए क्यों आएंगे, मैं तो एक राक्षस का असुर, मैं तो एक असुर कुल में पैदा हुआ एक बालक हूँ, मेरे लिए क्यों आएंगे। ही ब्रेक्स डाउन, ही इज क्राइंग। सो दैट इज द मोमेंट वेयर आई फील दैट हिज डिवोशन इज बीइंग चैलेंज्ड। जैसे तू बोलता है ना, वो क्या, कौन सा टर्म तू बोलता है, It's the कोड ऑफ internal कॉन्डक्ट। Okay, कोड ऑफ कॉन्डक्ट। तो वही उसका चैलेंज हुआ है यहाँ पे कि उसकी इस मोमेंट में ही गेट्स चैलेंज्ड, ही फील्स कि उसका डिवोशन क्या है, कि है डिवोशन मेरे में, बट भगवान मेरे लिए क्यों आएंगे। मैं ये सोच रहा हूँ वेयर डिड दिस कम फ्रॉम, वेयर डिड दिस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कम फ्रॉम, क्योंकि I'll tell उससे you. पहले तक हर बारी तो भगवान उसको बचा रहे हैं, उसको तो पता होना चाहिए भगवान मेरे साथ बचा रहे हैं। I'll tell you. I'll tell you. This is another thing that we'll get to this point. Put a pin on this, because Okay. when we get to the point about just Prahlad as a character in general, that is when. Do you want to talk about Prahlad? करना, बात करी रहे तो करना अभी से। Okay. So now Prahlad, for me, the thing I wrote down was that Prahlad has a lot of knowledge, okay, but there is a lot of wisdom lacking. Okay, he is still very wise. I understand that, but the wisdom that he is giving is just an echo ओके, of his knowledge for me. Okay, now अब इसको इंसानों की तरह समझा। हाँ. So you said कि उसका जो undying devotion है that never gets challenged, it is not meant to, because Prahlad knows. Okay, now remember you were talking to me about this chant. या सो नहीं, वो तो अलग सेक्शन है ना। नहीं वो इसमें ही आएगा, चलो because ठीक है, तो that ओके moves into the explanation. सो वन थिंग इज विच आई फेल्ट वेरी ऑड। अब जैसे कि मेरी जो नॉलेज थी, आई एम नो एक्सपर्ट, नो बडी इज़ एन एक्सपर्ट बाय द वे। हिंदुइज्म का बहुत ही नॉलेज तो लॉस्ट हो चुका है, वो अलग बात है। जितनी मेरी नॉलेज थी, मेरे लिए तो ये है कि वासुदेव इज कृष्ण, राइट, बिकॉज कृष्ण जी के पिता का नाम है वासुदेव। Yeah. So that is why that name got associated with Lord Krishna, and कृष्णा इज एन एक्सटेंशन ऑफ विष्णु, विष्णु के अवतार हैं, तो इसलिए वो वासुदेव नाम विष्णु का भी रखते हैं। तो जब बार बारी प्रहलाद ये मंत्र जप रहा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं सोच रहा हूँ
इस मूवी में ये श्लोक क्यों आ रहा है, क्योंकि वासुदेव तो कृष्ण का नाम है एंड कृष्ण तो बाद के अवतार हैं, तो ये तो क्रोनोलॉजिकली ये तो पहले आ रहा है. सो ये व्हाट इज दिस एनाक्रोनिज्म. मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे मानो वर्ल्ड वॉर 1 में कोई ऐसे हाथ उठा के बोल दे हाइल. मैंने कहा है ये कैसा है. तो मेरे लिए वो बहुत एक वो था. एंड मेरे लिए तो ये होना चाहिए था कि लाइक वो ओम नारायण नारायण क्यों नहीं बोल रहा. ही शुड एक्चुअली से ओम नारायण नारायण. Which is what one of the guards who is pushing him off the cliff says when he sees Lord Vishnu Yes. save him. He says Narayan. यस नारायण. मैं वही पर सोच रहा हूँ ना कि बिकॉज नारायण इज एक्चुअली द नेम. एंड आई रिसर्च्ड दिस. मैंने तेरे से बात करके कल गूगल भी किया जस्ट टू सी कि मैं क्या मतलब मैं गलत हूँ या शायद मेरी नॉलेज लैकिंग है. आई जस्ट गूगल्ड इट. गूगल में इन लोगों ने कहा है कि ये जो चैंट है दिस इज प्रेजेंट इन विष्णु पुराण, बट दे डोंट स्पेसिफाई कि कहाँ पे प्रोवाइडेड है, क्योंकि विष्णु पुराण तो पूरा सारे अवतार का एक रिकॉर्ड है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम मत्स्य अवतार एंड इट गोज टिल कल्कि. तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये तो ओम नारायण नारायण कैन बी इन विष्णु पुराण एंड इट कैन बी इन द कृष्ण जी का चैप्टर या आफ्टर कृष्ण जी का चैप्टर. बट दिस इज द स्टोरी ऑफ प्रहलाद एंड नरसिम्हा से आई मीन दैट इज द थिंग. एंड देन आई गूगल कि वासुदेव जो नेम है उसका मीनिंग बताया. उसका मीनिंग ऐसा लिखा था कि आई थिंक वासु मीन्स एवरीथिंग. रुक जा मैं खुद ही अभी गूगल कर लेता हूँ. वासुदेव का नाम रखा था वासु. So Lord Vishnu is called Vasudeva because the word Vasudeva means the one who resides was in all living, non-living, moving and non-living beings. तो ये explanation दिया है. तो मैं वही सोच रहा था कि मे बी मैं गलत हूँ या मूवी ने शायद सही यूज़ किया है या मैंने मिसरीड किया या इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस बिकॉज कि कृष्ण के पिता का नाम भी वासुदेव है एंड विष्णु जी को पहले से वासुदेव बुलाते थे. तो इट वॉज अ वेरी फैसिनेटिंग एस्पेक्ट फॉर मी बिकॉज मुझे वही लग रहा था या तो मेकर्स ने क्या ये जानबूझ के डाला है बिकॉज दिस श्लोक इज़ वेरी फेमस या एक्चुअली में ऐसा हुआ था. तो आई हैव नो आइडिया एंड मे बी इफ समवन नोज बेटर दे कैन पॉइंट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन. आई एम ईगर टू लर्न एंड इट हैज़ हाँ तेरे को ज़्यादा पता तू ही बता देगा बट अगर और भी किसी को पता है तो ये बता दो. तो नाउ टेल मी द आंसर. Okay, I am telling एक थोड़ा disclaimer because there are so many versions of each tale and each snippet of history. So this is one of them. ठीक है. And confirm करना is impossible. Right? जिस तरह से तूने बोला कि so many stories have been lost, so many tales, so much of historical evidence has been lost. We can't say anything for sure. Now, this is what I found in my digging, and this is something that fascinated me. जब मैंने सुना ना, I was like, so it piqued my curiosity so much that I wanted to know so much more. Now, this ties into how time works in Hinduism. ठीक है? So we know there are 4 युग्स. एक 4 युग होते हैं, राइट? सो 4 युग एक कल्प बनाता है. यस. ठीक है. हाँ. सो जो कल्प है एट दिस पॉइंट इन व्हेन वी लिसन टू प्रहलाद्स एंटायर थिंग, कुछ 27 या 28 कल्प्स गुजर चुके हैं. ठीक है. हाँ. एंड प्रहलाद इज बॉर्न विद द नॉलेज ऑफ ईच कल्प. ओके. जब वो पेट में होता है, नारद मुनि जो है वो जब कहानी सुना रहे होते हैं, he listens to them while he's in the womb. Yeah. And They he show listens. it in the- Yes. So Prahlad knows everything that has happened, and Prahlad knows everything that will happen. Okay. So this is the reason you're saying. yes, Prahlad is all income. उसको सब कुछ पता है. ठीक है. But he does not have the wisdom. There is still childlike innocence in him. Like वो अपने दोस्तों से ही पूछता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो. विष्णु लॉर्ड विष्णु को पूछने में क्या बुराई है, मैंने इतना तो क्या बुरा किया है. He doesn't understand those things, but he has knowledge of things. But what you are saying ठीक है. I have also heard this story that basically these cycles ये जो हैं हमारे जो युग हैं they keep repeating and I think after 24 kalp it makes a manvantar or something and after a particular set of manvantar that is Brahma's one day or something ऐसा है. मेरे को मैं बता रहा हूँ I don't know the entire thing. I have read it a long time ago so उसके basis में कर रहा हूँ and this is basically very similar to that theory of relativity, right? That entire time का वो. So of course there's
अपने स्क्रिप्चर्स में देर आर अ lot of things which have already been revealed to us and modern science is just catching up. Basically modern science is catching up to all these things. वो मैं समझ रहा This is हूँ, but interesting. मेरे लिए क्या है, हाँ, another thing which I want to say is, तू कह रहा है कि because प्रहलाद knows that maybe we are part of this cult and this is not the first time this story is happening. This is like that multiverse theory na, and that time theory ki maybe we are part of an alternate universe. And of course वही होता है कि हर युग and हर इसका एक, जैसे कि ये पुराण, अगर वी आर लिविंग इन द विष्णु पुराण, सो यहाँ पे सुप्रीम गॉड इज विष्णु. देर इज ऑल्सो द शिव पुराण वेयर शिव इज द सुप्रीम गॉड, Yes. एंड देर इज ऑल्सो अनदर पुराण वेयर दैट गॉड इज द सुप्रीम. तो वो भी मैं मानता, एंड हर पुराण इज जस्ट अनदर यूनिवर्स. दैट इज वॉट इट इज द मल्टीवर्स थ्योरी बेसिकली. So that I understand, and maybe what you are saying, it supports some of the argument. But मेरे लिए ये है कि वो जो सबसे पहले हिरण्यकश्यप आके इस इन्वेड करके ही काइंड ऑफ अनलाइव्स दैट वन पर्टिकुलर किंग, वो भी वही श्लोक बोलते हैं when he's when he's getting slain down. I'm not saying only Prahlad knew all of this. That knowledge was bestowed upon many people. Okay, and okay, I also have another theory about that one particular character. Like when Hiranyakashyap and Hiranyaksh have invaded this entire kingdom. Kingdom होता है कि क्या होता है? Kingdom ही होता है ना ये. Kingdom होता है. हाँ, तो and they've completely taken over, and literally in front of Vishnu's, Narayan's मूर्ति, they have captured this particular king and they are verbally humiliating him. और वो बोल रहे हैं कि ये कैसा राजा है, ये थोड़ी राजा हो सकता है, राजा तो स्ट्रांग होना चाहिए. एंड द राजा हिमसेल्फ, वी डोंट नो हिज नेम, राइट? दे नेवर रिवील हिज नेम. No. या, एंड व्हाट हैपेंस इज ही इज फर्स्ट ब्रोकन कि ये क्या है. एंड वो जैसे ही देखते हैं, देर इज अ फ्लावर विच फॉल्स फ्रॉम नारायण's idol and then lands in front of him, which gives him hope. And that is the same flower which keeps coming back to Prahlad again and again. Imagery है. Symbolism, imagery. Imagery all of है. that. या, दैट इज फिल्म मेकिंग. ऑफ कोर्स वो फिल्म मेकिंग के एस्पेक्ट है, ठीक है. बट आई ऑल्सो हैव अनदर थियोरी. बिकॉज क्या होता है कि जो प्रहलाद इन दैट स्टैंड आउट सीन, वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स इज दैट सीन ऑन द क्लिफ टॉप, जब वो दो राक्षस उसको नीचे गिराने वाले हैं. एंड वो एक राक्षस बोल रहा हूँ, असुर, वो उससे पूछ रहा है प्रहलाद से कि तुमको डर नहीं लगता कि तुम ऊपर से गिरोगे तो खत्म हो जाओगे? तो प्रहलाद इज सेइंग कि अरे मैं तो आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर ही यहाँ पे नष्ट हो जाएगा, पर मेरी आत्मा तो जीवित रहेगी, और मेरी आत्मा फिर किसी और शरीर में, किसी और रूप में, किसी और परिवार में जन्म लेगी दोबारा. सो आई हैव अ थियोरी दैट मे बी दैट किंग विच हिरण्यकश्यप स्लेन, उसी का रीइंकारनेशन है, एंड उसी का जो सोल है दैट मूव्ड टू प्रहलाद. Okay. I have like he rebirthed and उनका जन्म वापस होके he became प्रहलाद in this जन्म. Maybe. That is not something I've. I mean, हाँ, मेरे को नहीं पता. it is. मैं ये नहीं कह रहा कि it is. मैं मूवी को देख के I'm just connecting the dots. I could be wrong, completely wrong, but because there have been these there is a connect with that imagery कि या तो ऐसा हो सकता है, आई मीन दिस कैन बी इंटरप्रेटेड इन दिस वे कि शायद जो विष्णु हैं वो अपने सारे भक्तों को, जो अपने सबसे अच्छे भक्त हैं, उनको ऐसे ही रूप में वो अपने आप को रिवील कराते हैं. शायद ये भी यू कैन इंटरप्रेट दिस लाइक दैट एज वेल. या मे बी द रीजन वाई व्हेन द फ्लावर फॉल्स दैट किंग इज लिटरली स्माइलिंग एंड ही सेइंग कि तुम कुछ भी करो, मुझे नष्ट करो, हमारे आस्था को तुम कभी रोक नहीं सकते. तो मे बी ही नोज दैट ओके, दिस इज अ डिजाइन, कॉस्मिक डिजाइन, दिस इज अ डिवाइन डिजाइन विच इज हैपनिंग, एंड आई एम जस्ट, मेरा ये जो अभी शरीर है ये अभी नष्ट होने वाला है, मेरी आत्मा जारी रहेगी. सो दैट इज वाई आई फील दैट मे बी प्रहलाद इज द नेक्स्ट बर्थ ऑफ दैट गाय, एंड टाइंग इट टुगेदर इज द श्लोक, बिकॉज वो राजा भी वही श्लोक बोल रहे हैं. Yes. हाँ, हो सकता है. Because they never reveal the name of that person. We need to just understand maybe who Prahlad was in his previous birth. So maybe this can be his one. I mean, this can be interpreted this way. तो मुझे वो लग रहा है. मैं ये नहीं कह रहा कि see, I'm not tampering with the religion or I'm saying कि यही है या this is the definitive story. No, but fascinating is कि ये concepts, क्योंकि मूवी में है, मूवी में प्रहलाद खुद ये चीज़ बोल रहा है, उन असुर को ये बोल रहा है.
because there is enough evidence and enough visual imagery, enough puzzles have been laid across, मुझे उसको देख के वैसा फील हुआ. अगर आपको नहीं फील हुआ तो ठीक है, दैट्स फाइन. इसका मतलब आके मेरे को गालियां मत देना कि ये कैसे गलत है ना. ठीक है, गलत हो सकता हूं मैं, बट जस्ट बिकॉज मैं गलत हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो फील किया वो गलत है. मैंने फील this किया. is not our expertise, like religion and all Yes. this is not our Ye- expertise. film, I'm just watching it as a film and Yes, connecting the yes. dots. That's Yeah. it. जो And इमेजरी मेरा मुझे भी same दिखी ही है. है. हाँ. और ये चीजें देख के ही मेरे को लग रहा है कि yes, the maker knows how to make films. Yes, I would, because कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, on my rewatch I actually, so some of the problems were actually solved for me. I enjoyed the film on my rewatch a lot more, especially the first half, because writing wise I think the first half is very strong, and Okay. because there are small things. The only thing I think would have mattered, so ek to from this religion perspective, this is what I find fascinating, is that nobody tampers with कर्म. ठीक है, मेरे को ये हाँ. कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इज दैट कश्यप could have guided his sons. ठीक है, उसको पता था सही गलत क्या है. He did not. Okay. Yeah. Solely because he understands कि मेरे को ये छेड़खानी नहीं करनी है, वो कर्स हो गया है. ठीक है, my sons are destined to be these people, so मैं उसमें छेड़खानी नहीं करूँगा. Yeah. हाँ, so he understands that much. That is what I find fascinating, कि ये सब कोई ये सब जो ऑलरेडी रिटन चीजें हैं ना, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करता है. हाँ, And Kashyap मतलब knows उनको that. पता है कि सी अल्टीमेटली क्या हुआ. यू कैन, आई मीन दिस इज अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग, बिकॉज क्या है कि बिकॉज कश्यप डिड नॉट टैम्पर विद दैट डेस्टिनी ऑफ वॉट हिरण्यकश्यप एंड हिरण्याक्ष हैव टू बिकम, उसकी वजह से क्या क्या हुआ है देख. बिकॉज ऑफ हिरण्याक्ष वी हैव अर्थ एज अ प्लैनेट विच इज कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम दैट, यू नो. वो लोक इसलिए तो हुआ है दैट वराह yeah. अवतार आके अर्थ को वहां से हटा के इट पुट इनटू दैट ऑर्बिट बिकॉज ऑफ दिस ओनली. वरना अर्थ वाज इन अ डिफरेंट प्लेस. Yeah. इट वॉज विथ, तो दिस इज अ स्टोरी विच आई हैव रेड, सो इसलिए इट वॉज अ वेरी फैसिनेटिंग. एंड दिस ओनली हैपेंड बिकॉज ऑफ हिरण्याक्ष. दिस वॉज द कॉस्मिक डिजाइन. एंड देन बिकॉज ऑफ हिरण्यकश्यप व्हाट हैपेंड, वी गॉट समवन लाइक प्रहलाद. Yes. So it's like there is always, and this is the teachings of of Sanatan Dharma and Hinduism, कि भाई हर चीज का ना पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा. बट क्या होगा, किसी किसी चीज में नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा. पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि बिकॉज हिरण्यकश्यप वॉज बॉर्न, तेरे को एक प्रहलाद मिला. दूसरा ये है, he managed to achieve something which nobody has achieved and nobody will ever achieve. He managed to get a boon from Brahma himself. Usually everyone gets boons from Lord Shiv. Yes. वो तो मीम है ना कि अभी विष्णु गए हैं, बोल रहे कि एक देखो भाई अभी मैं अवतार लेके खत्म करके आया हूँ, आप किसी को वरदान मत देना. एंड महादेव इज लाइक हाँ ठीक है. एंड सम राक्षस इज, ये देखो मैंने आपको तप किया है, मेरे को अमर होना है. एंड लॉर्ड शिव इज लाइक हाँ तथास्तु. एंड यहाँ पे विष्णु जी बोल रहे हैं क्या कर रहे हो. हिरण्यकश्यप के बारे में अलग से बात करेंगे, बिकॉज ये चीज जो तू बोला ना, दिस जो तुझसे तप किया था हिरण्यकश्यप ने, दैट अगेन टाइज इनटू something I love about character work in this film. But Yeah. we'll get to it. Let's talk about, like, okay, something they missed out on is that if this film was about Hiranyakashyap, they could have added the origin story of Jay and Vijay. Okay, Okay. हाँ, The film for me should have started with that. It would have added so much context. Instead, they start with, it almost feels like they're blaming Diti yes. for everything. I don't feel like that is true. They are not blaming her. They are blaming lust which took over her. Yeah. So they are actively villainizing lust, which is a problem for me, because अपने धर्म में lust is not evil. I feel that is a very Western construct. Sure, but the origin story is so much important, because you have kept the theme of when things are written, don't tamper with them. ठीक है. So
everything was supposed to happen in this way. So again, for people who don't know, maybe Jay and Vijay, they were the previous like previous birth में they were Hiranyakashyap and Hiranyaksh. वो लोग previous birth में Jay and Vijay थे, and they used to be the they used to guard the gates where Lord Vishnu, Vishnu yes, was living. Yes, and then yes. उन्होंने ब्रह्मा जी के कोई अवतार को अंदर नहीं आने दिया था. कुछ सेजेस थे उनको, डिवोटीज को, आई थिंक उनको अंदर नहीं आया, एंड देन दे गॉट कर्स्ड, and Yeah. they got cursed to become Hiranyakashyap and Hiranyaksh. Actually, they did not get cursed to become Hiranyakashyap and Hiranyaksh. They got cursed कि तुमको क्या है, तुमको ना सफ़र करना होगा और तुमको भूलोक जाके सफ़र करना होगा. और उनके पास चॉइसेस थी कि या तो तुम 7 जन्म सफ़र करो, या तो क्या करो, या तो तुम 7 जन्म सफ़र करो, या तो तुम कम जन्म लो, बट यू विल बी इविल, एंड हर जन्म में तुमको क्या होगा, तुमको विष्णु आके ही खत्म करेंगे. Yes, yes, yes. So they took that they took that option because according to them, if they get slain by Lord Vishnu, उनके पाप और कम होंगे, and Yes. क्या होगा कि they will join their परमात्मा sooner. Hmm. So ये स्टोरी भी मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगती है. देयर इज एक्चुअली अ टेम्पल इन आवर कंट्री जिसमें वी हैव दीज 2 गार्ड्स इन Yes. फ्रंट ऑफ विष्णु's idol. So यार ये see, our history, our culture is very rich, and I am very happy that finally someone is bringing these stories to the big screen and making it in such a way that our next generation is, getting inspired by this. क्योंकि मैं चाहता हूँ, because we have superhero movies are on a very bad place right now. So I will say this is the opportunity, tap into it. And Make these this. are fundamentals. We can actually get these worldwide. जैसे हाँ. हॉलीवुड की सारी सुपर हीरो मूवीज हमारे पास आई थी ना. If we are able to make this in such a way that it is actually marketable, because we have such a rich bank of stories. Yes. And तू देखना So- अपनी स्टोरी से कितने डेरिवेटिव्स है, ठीक है. Yes. And the thing is, अपनी हिस्ट्री जो भी है उसके, the thing is like these tales get passed around, they take form of like different, like दूसरे भगवान उसमें आ जाते हैं. All of this happens, but it's so strong, and then we have only forgotten all of this. जो स्टोरी टेलिंग का पूरा Not just- फंडामेंटल्स है. Not just forgotten, we have actively villainized it. We have actively, Yes. and I also blame some blame lies on the right wing as well, because in the previous generation, मेरे को अभी भी याद है, in the 90s when that animated Japanese anime movie came of Lord Ram, रामा, जो अभी रिलीज भी हुई थी, री रिलीज हुई थी अभी पिछले कुछ आई थिंक 3 महीने पहले. तो वो मूवी जब 90s में आई थी, पहली बात तो ये, वो तो ऑफ कोर्स कांग्रेस ने उसको बैन किया था, बिकॉज दे फेल्ट दैट मूवी केम आउट आफ्टर द बाबरी मस्जिद वो वाला कांड. सो उनको लग रहा था कि वो मूवी रिलीज करेंगे तो इट विल कॉज कम्युनल वायलेंस. मैंने कहा वाओ, बहुत ही बढ़िया. ये तो अलग लेफ्ट वाले अलग उसमें थे. अपने जो राइट विंगर्स हैं, दे गॉट ऑफेंडेड कि ये तुमने हमारे भगवान पे कार्टून कैसे बनाया. मैंने ये भगवान, ये लोग ना सुधरेंगे. टुडे फॉर महाअवतार नरसिम्हा वो चप्पल उतार के अंदर जा रहे हैं. चप्पल उतार के जा रहे हैं. तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि सी, इट वाज सो इजी टू विलेनाइज द राइट विंग, बिकॉज दे वर एक्चुअली नॉट प्रिपेयरिंग टू, दे वर होल्डिंग ऑन टू कि अरे नहीं हम बदलेंगे नहीं. सो दैट इज वाई पीपल रिजेक्टेड देम. दैट इज वाई पीपल डिड नॉट टेक दी स्टोरी सीरियसली. एंड दिस स्टोरी, दिस इज अगेन, इट गोज अगेंस्ट. इसलिए ना मेरे जब लिबरल्स, लाइक आई एम लिबरल अभी तो कि सबको पता ही है, जब लिबरल्स आके अपनी ही ये सब को विलनाइज करते हैं ना, आई फील लाइक अपने जो भी हिस्ट्री है इज सो लिबरल. दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन evil father. This is a story about an evil father. This is a story, basically the entire theme is, even if you are born in a community which is vilified, if you are a true devotee, even God will show up for you. Yeah. The God showed up twice. The God first showed up in his actual form to meet the child, give him a boon. Then he literally took an avatar for this one child.
ये कास्टिज्म के पूरा ही इट्स गोइंग अगेंस्ट इट, व्हिच इज गुड, इट्स सच अ लिबरल थिंग, एंड हम लोग ही उसको वो वहाँ पे टैप इन नहीं कर पा रहे हैं कि ये सब स्टोरी एक्सप्लोर करो ना यार. एंड देर इज वन डायलॉग विच स्टेड विथ मी. नरसिम्हा अवतार में वो बोलते हैं फाइनली व्हेन प्रहलाद काम्स हिम डाउन इन द एंड, वो मुकुट आ जाता है उनके इसमें, एंड देन वो बोलते हैं कि मेरे भक्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्तों में तुम गिने जाओगे और सदियों तक तुमको कोई भूलेगा नहीं, चाहे जितने भी युग युग तक तुम्हारा नाम सब याद रखेंगे. और ये भी बोला कि अगर कोई तुम्हें पूजेगा तो वो अपने कर्मों का जो बुरा फल है उसको बहुत अच्छी तरह से कम कर सकता है. बेसिकली दैट इज द लेवल ऑफ he attained. Prahlad attained from being born to an asur. He became one of Lord Vishnu's favorites. So that is what is more redeeming than this? And they've also not villainized asurs. Okay. Yes. अरे asurs are not meant to be villains यार. ये बहुत exactly. stupid interpretation है जो बॉलीवुड में परपिट यहाँ पे उन लोगों ने नहीं किया है. ये जो असुर को जो डीमन बनाने का जो कल्चर है ना, ये साला क्रिश्चियनिटी से लेके आए हैं. असुर्स आर नॉट डीमंस. ये इनको लोगों को समझ में नहीं आती कि असुर डीमन नहीं है, वो दे आर जस्ट अ डिफरेंट क्लैन, दैट्स इट, हु इंडल्ज इन प्रैक्टिसेस व्हिच आर कंसिडर्ड टू बी टैबू. दे टैप इनटू समथिंग डार्क. यहाँ पे वही तो होता है जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जो गुरु होता है, उसका नाम क्या है मैं भूल गया, शुक्राचार्य. वो जो शुक्राचार्य है, तो वो बताते हैं ना कि शुक्राचार्य उसको जो ज्ञान दे रहा है इन दोनों को, ही इज टैपिंग इनटू आर्ट्स, डार्क आर्ट्स. सो डार्क आर्ट्स एग्जिस्ट. द पीपल, द ट्रू भक्त्स एंड पंडित, ये लोग इन डार्क आर्ट्स को प्रैक्टिस नहीं करते. दे आर सो प्योर, तभी भगवान जो देव हैं वो खुद आके इन पूजा में पार्ट करते हैं. वो स्टार्टिंग में वही तो वो किंगडम दिखाते हैं ना. सो these are the two paths which they show, and this is it. This is basically good and evil. This is the concept of good and evil, and it's like asurs are not an entire representation of evil. Even in asurs there is some sort of hierarchy and some sort of compassion and everything. हिरण्यकश्यप, उसमें लाख बुराइयां हैं, बट उसका एक डायलॉग है, वो बोलता है कि सारे लोगों को कॉन्कर करने का, अलग कॉन्कर का मैं शब्द याद नहीं कर पा रहा, सारे लोगों को कब्जा, पता नहीं क्या वो बोलता है, बेसिकली कॉन्करिंग द एंटायर स्वर्ग एंड सबको का एक सुख एक तरफ, एक सुख और पुत्र के प्रेम का सुख अलग तरफ. एंड ही इज लिटरली सेइंग इट बाय प्रहलाद को अपने गोद पे बिठा के. ही इज बीइंग अ वेरी लविंग फादर. And same scene till Prahlad brings Lord Vishnu into the conversation. Hiranyakashipu is agreeing with Prahlad. एंड इवन हाँ, वो तो बोल रहा है, क्योंकि प्रहलाद ऐसे बोल रहा है कि जो अपने प्रजा के सुख के लिए या अपने प्रजा को ऐसा ज़्यादा तकलीफ ना पहुंचाए, प्रहलाद के हित के प्रजा के हित के लिए वो अच्छा, वो शूरवीर, वो लीडर है, वो ऐसे बोल रहा है. देयर इज अ स्लाइट एक्सप्रेशन चेंज इन हिरण्यकश्यप. ही इज अ लिटिल कि ज़्यादा बोल रहा है, इतना नहीं है, बट स्टिल ही इज इम्प्रेस्ड बाय द नॉलेज प्रहलाद हैज गेन्ड. इट्स लाइक कि तुमने बहुत उचित, तुम्हारे उम्र के परे है तुम्हारा ज्ञान, तुमको अच्छी तरह से शिक्षा मिली है करके. ही प्रेजेस हिम कि ही एक्चुअली नोज व्हाट इट मीन्स टू बी अ गुड लीडर. या एंड व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, लाइक ही रिस्पेक्ट्स हिज गुरु एज वेल. शुक्राचार्य को ही इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड. एंड वन मोर थिंग व्हिच आई फाउंड एडमायरिंग वाज दैट ये हिरण्याक्ष जो होता है ना, ही हैज सच ग्रेट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिज ब्रदर. या ब्रदर, वो जिसका बार-बार भाई आशीर्वाद ले रहा है. वही जिसका भाई हिरण्याकश्यप हो, उसको कभी वो कोई कुछ नहीं कर सकता, समथिंग लाइक दैट ही सेज. Yes, yes. Again, so they are shown to be good people who have just been led the wrong way. Yes, and another thing which I want to talk about, this entire movie ka theme, this entire movie's theme is devotion and bhakti. Like if you are devoted to anything, you can be, if you are a true devotee, you will get rewarded. That is the message. Hiranyakashyap was also a true devotee. Yes, let's talk about Hiranyakashyap.
हिरण्यकश्यप का डिवोशन है कि ही वॉज डिवोटेड टू हिज ब्रदर, ही वॉज डिवोटेड टू हिज वाइफ, ही वॉज डिवोटेड टू हिज सिस्टर, ही वॉज डिवोटेड टू हिज गुरु, ही वॉज डिवोटेड टू द असुर. सबके लिए ही वॉज डिवोटेड. द ओनली पर्सन ही हैड द्वेष अगेंस्ट वॉज लॉर्ड विष्णु, बिकॉज उसको वही सिखाया गया है कि विष्णु को हेट करो. हाँ. विष्णु छल करता है, विष्णु हमेशा देवों का साइड लेता है, विष्णु असुरों का साइड नहीं लेता. एंड दिस इज बेसिकली बिकॉज हिरण्यकश्यप वॉज एन असुर. उसकी जो फेशियल स्ट्रक्चर है इट वॉज एन असुर ओनली. एंड बताया गया है कि हाँ ये असुर ही इसकी कोक में जन्म लेंगे करके पहले से बताया गया था. दैट इज वाई बिकॉज ही वॉज फेड दैट. जैसे वो बोलते हैं ना, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि वो लाइक शुक्राचार्य, जैसे सुपरमैन का जो मैन ऑफ स्टील में जो बाप था जॉनथन, उसको हिरण्यकश्यप को वैसा बाप मिला होता ना तो कंफ्यूज्ड होता वो. यहाँ पे उसको शुक्राचार्य जैसे गुरु मिला है. शुक्राचार्य जैसे गुरु ने उसको गलत दिशा में डायरेक्शन दी है, बट ही मोल्डेड हिम प्रॉपरली. And that is so, it is shown so well. Again, Ashwin Kumar here excels uska, and this is pure visual storytelling, ठीक है. Now there is a scene जहाँ पे Hiranyaksh and Hiranyakashyap along with Shukracharya, they are both, all of them are around a havan or this pyre or something, right? And Yeah. because they are so into this, they start levitating. Yes. Hiranyaksh gets distracted. He's like, अरे levitate हो रहा हूँ. Hiranyakashyap doesn't. He doesn't. Yes. वो full focused है. Again, that shows, and that quality is passed down to Prahlad. Yes. Yes. Okay. See the devotion जो पूरा devotion है, that actually प्रहलाद inherited it from Yes. हिरण्यकश्यप only. And that's the वो storytelling बस वही है magic. कि वो बिकॉज वही है कि ये भगवान का डिजाइन ऐसा था कि ठीक है तू डिवोशन जितना डिवोटेड तू है ना, तेरा बेटा भी उतना ही डिवोटेड होगा, बट जिसको तू चाहता है ना, जिसको तू नफरत करता है ना, उसकी तरफ उसके लिए डिवोशन होगा. सो दिस इज, आई मीन दिस इज व्हाई यू वर सेइंग व्हाट यू वर सेइंग इज राइट. दिस मूवी शुड हैव बीन अबाउट हिरण्यकश्यप एंड हिरण्यकश्यप शुड हैव बीन द फोकस पॉइंट. बार बारी वी शुड हैव सीन हिरण्यकश्यप गेटिंग एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड दैट ही इज लूजिंग विथ हिज सन. पूरी दुनिया को जीत लिया, सबको जीत लिया, एंड अपने बेटे से हार रहा है. And he lost because of his internal conflict. Okay. Yes. He had to go for the boon. उसको तपस्या करनी थी, ठीक है. हाँ. That is where he ignored his wife. उसकी वाइफ को फिर नारद मुनि ने वो पूरा नॉलेज दिया. That is when things turned around for him because he was not there for his wife. एंड ऑल्सो लाइक ये भी डिजाइन है ना कि बिकॉज ही अबैंडन्ड हिज वाइफ, you have Indra who wanted to Yes. capture the wife and maybe unalive her. I don't know what he had plans. तो नारद इंटरवीन्ड एंड बताया कि तू धर्म ये तेरा धर्म नहीं है, ये कार्य करेगा तो दिस विल बी अधर्म. एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कर्मा, यू आर टॉकिंग अबाउट कि जो कर्म का जो कॉन्सिक्वेंसेस, एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, because what Indra did, he had to be a slave. He had to lose his entire kingdom. Swarg khatam. Because of that one action which he did, no god came to protect him when Hiranyakashyap came to intervene. And you know, when Hiranyakashyap invaded Swarg. क्योंकि चाहते तो ब्रह्मा आके रोक सकते थे. हाँ. या कोई भी शिव जी या कोई भी आके रोक सकते थे, बट बिकॉज इंद्र ने बुरा कर्म किया, उसको भुगतना पड़ा. उसने एक गर्भवती स्त्री को उसने अबडक्ट किया. दैट वाज द रॉन्ग थिंग विच ही डिड. एंड इट वाज एक्चुअली, दैट एंटायर मोन्टाज वाज एक्चुअली ब्यूटीफुल. जिस तरीके से वो दिखा रहे थे ना कि हिरण्यकश्यप तपस्या, वो पहले चढ़ रहा है, चढ़ते चढ़ते देयर इज अ मोनोलॉग, पीछे वॉइस ओवर चल रहा है कि ये अपने गुरु, सही गुरु को तुम चुनो, अगर तुम गलत गुरु को चुनोगे तो तुम्हारा मार्ग गलत जगह पे जाएगा. और कभी कभी अंधेरा इतना ज्यादा हो जाता है Yes. कि अच्छे लोग भी बुरे कर्म करते हैं. तो दैट इंटरकट्स विथ इंद्र कमिंग टू अबडक्ट, क्या नाम होता है, कयाधु. देखो मेरे को नाम याद है, सोचो कितना इम्पैक्ट आया था इस मूवी का, मेरे को नाम याद है.
तो ये चीज काफी अच्छी थी. एंड यहां तक ना द एज यू सेड द राइटिंग ऑफ द मूवी वाज वेरी स्ट्रांग फर्स्ट हाफ में. प्रहलाद जैसे ही आता है पूरी मूवी की एनर्जी लेवल डाउन. Yes, it should have been about Hiranyakashipu through and through. एंड प्रहलाद शुड हैव बीन द एंटागनिस्ट फॉर हिरण्यकश्यप. Yes. वी शुड हैव सीन इट फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव. हमको प्रहलाद के पर्सपेक्टिव में जाने की जरूरत ही नहीं थी. ये इन्फिनिटी वॉर होना चाहिए पूरा. दिस शुड बी इन्फिनिटी वॉर बिकॉज वी ऑलरेडी सी फर्स्ट हाफ में एवरीथिंग हिरण्यकश्यप वेंट थ्रू एंड वी थिंक okay fine, this is justified. His hatred for Lord Vishnu, it's not justified in the sense that he's right, but it's justified ki I understand why he hates. Okay. And that is what makes a good character na, ki you understand the motivation why he is doing this. Yes, and again in the second half they could have also, or first half they could have also set up Holika so that jab Holika they should dies it the impact is not there because this is such a big मेरे को story. पहले तो मेरे को वो सीन ना थोड़ा सा बहुत ही फनी लगा था कि जब वो जल रहा है ना, पायर जल रहा है, हिरण्यकश्यप इज नॉट डूइंग एनीथिंग. वो बोल रहा अरे कुछ तो करो, अरे रोको. Yes, मैंने कहा yes. तेरी पावर्स कहाँ गई, तू कुछ कर क्यों नहीं रहा? क्या पागल है क्या तू? कह रहा है कि अरे आग बुझाओ, अरे जल लाओ. अबे तू कर ले, तेरी बहन जल रही है, तू कर ले. And Prahlad again, these are small teases. Prahlad knows exactly what is going to happen because he has knowledge. So वो बोलता है जब एंड कि Okay. जल जाओगे यार तुम. तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, दैट इज वाई मेरे लिए वो वर्क नहीं किया था जब प्रहलाद का एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है ना. इन सब के बाद ही तो आता है प्रहलाद का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस Yeah, कि yeah. क्यों भगवान आके मेरे से मिलेंगे. मैं वही बोल रहा हूँ कि तेरे को जब पता है कि भगवान तेरे साथ है, व्हाई डू यू थिंक द भगवान इज नॉट गोइंग टू कम एंड मीट यू? I'll tell you why, because exactly in that particular scene जहाँ पे I think the Lord of the Oceans or something saves him, right? It's because he forgets, and then that is the boon he asks out of Lord Vishnu. कि please just grant me this boon that I never forget you. बट ये चीज सेटअप नहीं करी ना, ये सडनली लगा. हाँ. सिर्फ इस सीन में ये आया, मेरे को ऐसा लगा कि ये इसका सडनली इसका फेथ शेक कैसे हो गया. ये reason इससे है, पहले तक but- तो ये हाँ, but explain नहीं. मतलब इससे पहले तक तो इतना स्ट्रांग था इसका फेथ, मेरे को वही समझ में नहीं आया. व्हेन ही नोज दैट होलिका इज गोइंग टू बर्न विथ हिम, कि इसको कुछ नहीं होगा, होलिका खत्म हो जाएगी. इसको लग रहा है कि वो ऊपर उसको क्लिफ से नीचे धकेल रहे हैं, उसको पता है कि कुछ नहीं होने वाला. ही नोज कि अगर उसका शरीर भी नष्ट हो गया तो ही विल बी रीबॉर्न. सो मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाई डिड दैट, इवन दो दैट इज अ ब्यूटीफुल सीन. उसके बाद वो जो पूरा जो मोमेंट है ना, व्हेन ही ओपन्स हिज आईज एंड ही सीज नारायण, ब्यूटीफुल सीन. आई एक्चुअली लव्ड इट. एंड आई विल से दैट नारायण के 3D मॉडल में बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि वो बहुत अच्छा बना है उन लोगों ने. एंड अनदर सीन, वेरी ब्यूटिफुल जक्स्टापोजिशन. सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सीन, अमेजिंग जक्स्टापोजिशन. जैसे कि जब प्रहलाद को पहली बारी नारायण मिलने आते हैं, ही इज लिटरली होल्डिंग हिम लाइक अ लविंग फादर, प्रहलाद को. एंड ही इज एक्चुअली लाइक, प्रहलाद इज क्राइंग एंड वी आर सीइंग इट. वो उनको ऐसे पकड़ के नारायण बहुत ही डेलिकेटली उसको होल्ड करके ही इज टॉकिंग टू हिम. देन उसी टाइम पे ही गिव्स हिम अ बून कि जहां भी तू जाएगा प्रहलाद, हर जगह मैं मिलूंगा. सो देर इज अ लॉट ऑफ बेसिक, देर इज दिस मिसकंसेप्शन. जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे तुमको क्या लगता है कि भगवान हर जगह है? कहाँ है? साबित करो. सिर्फ तुम्हारी उस कहानी में ऐसी थी ना कि पिलर तोड़ा था, नरसिम्हा आए थे, तो मैं ये पिलर तोड़ूंगा, भगवान आएंगे. दिस इज द मिसकंसेप्शन. वो पिलर टूट के नरसिम्हा इसलिए आए थे बिकॉज प्रहलाद हैड दैट बून. Yeah. That wherever Prahlad goes and whichever object he sees, he will find Narayan there because Lord Vishnu had personally given him that boon. तू प्रहलाद है तो तेरे को भी मिल जाएगा वो boon. तू प्रहलाद नहीं है तो तेरे को नहीं मिलेगा. तो यही है. That was a beautiful moment. Then finally when Hiranyakashyap becomes that massive figure, और वो ऐसा सारे जो उसका जो पूरा वो लोक है उससे बड़ा दिख रहा है, एंड ही इज एक्चुअली स्क्रीमिंग कि मैं ही सब कुछ हूँ. यू आर लिटरली सीइंग कि क्या है, तू इतना छोटा सा चींटी है. दैट इज हाउ विष्णु अपीयर्स टू हिम. ही शोज हिम हिज ट्रूएस्ट फॉर्म. एंड हिरण्यकश्यप को भी ही इज होल्डिंग हिम इन हिज हैंड. एंड लुक एट द जक्स्टापोजिशन कि हाउ विष्णु अपीयर्ड टू प्रहलाद एंड in contrast how Vishnu appeared in front of him, Hiranyakashyap. Like at story के हिसाब से
लॉर्ड विष्णु दोनों के ही पिता हैं, बट लुक एट हाउ ही ट्रीट्स हिज डिवोटीज एंड लुक एट हाउ ही ट्रीट्स हिज हेटर्स. ही इज ट्रीटिंग हिज हेटर विथ कंपैशन एज वेल, Yeah. but not the same level of compassion as Prahlad, of course not. But still, if he wanted, Vishnu could have just crushed him. एक सेकंड ना लगता. बट वो भाई दैट वाज अ ब्यूटिफुल विजुअल वंस मोर कि वो इतना बड़ा फॉर्म उनका वो पूरा विराट रूप दिख रहा है और उसमें वी आर सीइंग वराह रूप एंड नरसिम्हा का फेस आ रहा है एंड वी आर ऑल्सो सीइंग दैट ही इज वो वॉर्टेक्स दिखता है ना पूरा स्पेस टाइम. एक ब्लैक होल का उन लोगों ने इमेजरी दिखाया. yes. फिर एक पूरा एक वॉर्टेक्स दिखाया टाइम, दैट इज बेसिकली अ टाइम वॉर्टेक्स एंड देन यू सी दैट इट इस इनके आंखों में जा रहा है. मैं वही कह रहा हूँ ना, ये विजुअल्स देख के मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार these people know how to make a film. Imagination, पता है this is all just showing कि इनका imagination और वो लोग execution level कितना strong है. this is how you show you blend modern concepts with something very traditional जो आदि पुरुष करने की कोशिश कर रही थी बट हग दिया था उसमें. I have not seen. अबे करेंगे एक दिन आदि पुरुष भी. Adi Purush is everything wrong with how to adapt a particular and how to bring something into the modern world. They did not respect the source material. They did not understand the source material. Usko actively they insulted it. यहाँ पे there is a lot of Hollywood imagery. I mean, look at the designs of the vehicles and look at the designs of the ये पूरा वो थोड़ा सा ऐसा लगता है हवर क्राफ्ट है. और जिस तरीके से फाइट सीक्वेंसेस होती है और जिस तरीके से हिरण्यकश्यप नरसिम्हा से एस्केप होके जाता है, दैट लुक्ड वेरी मच लाइक द इफेक्ट थैनोस यूज्ड विद दैट स्पेस पोर्टल जिससे वो गायब होके जा रहा है. सो वेरी मच सो. और एक्शन सीक्वेंसेस भी बहुत मॉडर्न है जिस तरीके से उन लोगों ने दिखाया है. एंड दैट एंटायर मैसेकर सीक्वेंस, दैट वाज मॉर्टल कॉम्बैट. दैट वाज प्योर मॉर्टल कॉम्बैट. There were like Star Wars के spaceships. There was Lord of the Rings imagery as well, where when Hiranyaksh dies and वो पूरा पहाड़ पे खड़ा है, right? And again, this film uses the elements fire and water and earth so well. Okay, like for example, that anger Hiranyakashyap has. ठीक है? So when he's standing and he is vowing that he will take revenge, पीछे से flames जा रहे हैं उसके ऊपर of the fire. ठीक है? Looks it again works perfectly works. So visual storytelling, visual medium उन लोगों ने बहुत अच्छे से use किया है to just add to the emotion. ठीक है? वो emotion heighten हो जाता है because the visual is going with that, right? This one thing I will say, I felt a little odd. एक scene, okay? I think the only scene they should have taken to characterize Prahlad was that वो जो बचाता है बच्चे को वो बचाता है, ठीक है, फ्रॉम हाँ द अदर सीन वेर ही हैंड्स दैट एप्पल was a little, I was like यार तू प्रिंस है, okay, you can do a lot more than just hand the apple to that kid. I have a contradictory opinion. Basically वो तो बच्चा होता है उस टाइम पे. He is a kid and he has not even gone to the Gurukul. So उसमें वो vast knowledge नहीं है तब. उसकी knowledge was from the womb. That is what I'm saying. No, but that is different. But that is a different kind of knowledge he gained in his mother's womb. Even Abhimanyu gained the knowledge of entering the Chakravyuh. So it was something like that. But यहाँ पे क्या है कि he is well sheltered. He doesn't know the suffering which these people are going through. इसको पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको समझ में नहीं आ रहा. For him, अच्छा इसके सामने ऐसा लग रहा है कि उस बच्चे को वो एप्पल देगा and वो बस he is ignorant to it. That is the visual कि in front, because he is Hiranyakashyap's son, he is well respected by everyone. So अगर वो कोई एप्पल दे रहा है उस बच्चे को, वो जो बगल के असुर है वो तब कुछ नहीं करेंगे उसके सामने, क्योंकि they don't want to show the kind of tyrants they are. जैसे ही आगे बढ़ गया एंड विजुअली भी कन्वे हो रहा है कि वो प्रहलाद doesn't even turn back. फोरग्राउंड में वो जो चैरियट है वो आगे बढ़ रहा है और पीछे वो बच्चा रो रहा होता है. Now, the same apple comes back. In the end, when Prahlad receives the boon from Vishnu and he's coming back,
the two guards who had thrown him from the cliff, they are sitting and they have an apple in, one of them has an apple in his hand. वो जो बच्चा होता है जो उसको स्टार्टिंग में एप्पल नहीं मिली थी, या मेरे को पता नहीं वो सेम बच्चा है कि नहीं, बट वो बच्चा आता है, वो एप्पल लेके जाता है और इस बार ही उसको एप्पल दे रहे हैं ये राक्षस, ये असुर. Okay, maybe. So Yeah. that is why the apple comes back into play, to show the change in the mindset. That That- there are ये there are influence some हुआ है ऐसा. असुर कि असुर का ये इन्फ्लुएंस हुआ है. तो आई विल डिसएग्री विथ यू कि वो एप्पल का सीन, द एप्पल का सीन इज मेंट फॉर दिस साइक्लिकल. तभी ये सारी चीजें देख के तो मेरे को लग रहा था कि भाई इनको मूवी बनाना आता है. दे नो दे सेटअप एंड पे ऑफ जो है ना, ये आता है. Yeah, the way you described it, I think हाँ ये intentional है यहाँ पे. जैसे छावा में हमने बात किया था, छावा जो पहली मूवी थी उसमें जो इंट्रोडक्शन पॉइंट है, जब वो संभाजी महाराज आते हैं एंड यू आर सीइंग हिम राइडिंग अ हॉर्स एंड वो पूरा फाइट चल रहा है उस किंग की, जब पहली बारी वो आके फाइट कर रहे होते हैं एंड बीचों बीच फाइट में ही सीइंग दिस रैंडम चाइल्ड, और ऐसा लगता है कि Yeah. क्या है ये. Yeah. इट डिड नॉट फील लाइक दैट. आई मीन वो सीन आता है और उसके बाद वो सेटअप ठीक है, वो कहीं जा नहीं रहा, वो बाद इट मियांडर्स. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे इट वॉज प्लांटेड विथ इंटेंशन, प्रॉपर इंटेंशन. एंड मुझे ये नहीं पता, क्योंकि देख ये ना, ये जो मोमेंट है, दिस इज एन एंटायरली सिनेमैटिक मोमेंट. ये कभी तेरे को प्रोज में नहीं मिलेगा. दिस विल नेवर कम इन प्रोज. ये जो सीन है ना एप्पल वाला सीन, दिस वोंट वर्क इन प्रोज. दिस वोंट वर्क इन नैरेटिव. जैसे कि अगर तू स्टोरी सुना रहा है तब भी दिस वोंट वर्क. दिस कैन ओनली वर्क एज अ विजुअल मीडियम, बिकॉज इसमें कोई डायलॉग नहीं है. स्टार्टिंग में जब एप्पल दिया, It's during a एप्पल को song, I एक think. असुर सॉन्ग पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, बट फिर वो असुर जो है, असुर उस एप्पल को लेके क्रश करके आगे बढ़ रहा है एंड यू सी द टीयर्स फ्लोइंग फ्रॉम द चाइल्ड. एंड बाद में भी सॉन्ग में ही आ रहा है, बाद में भी जब वो असुर बैठे हैं एक दूसरे के सामने और फिर वो एप्पल लेके जा रहा है, तो ये असुर उसको ऑफर कर रहा है. देयर इज नो डायलॉग. उसके बाद डायलॉग आता है कुछ. Okay. Again, मैं 2 बार देखी. I didn't pick up on this, but but- maybe when it comes out on OTT, I'll go through this scene again. तो ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये सारी चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है. बट उसके बाद जिस तरीके से वो दिखाते हैं ना कि काफ़ी राक्षस, ये जो असुर मैं बार बार ही राक्षस बोल रहा हूँ, ये सारे जो असुर हैं ये फिर प्रहलाद के साथ नाचते नाचते हिरण्यकश्यप के चेम्बर्स की तरफ जा रहे हैं. वो मेरे को थोड़ा सा ऑड लगा था. उसको देख के मेरे को बड़ी पूरी इस्कॉन वाली फील आ रही थी कि अरे ये तो पूरा वो इस्कॉन का वो चल रहा है, जैसे वो नाच रहे होते हैं ना, वैसा वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा था कि चलो थोड़ा सा इस्कॉन को प्लीज करने के लिए शायद ये सीन डाल दिया. बिकॉज इस्कॉन, ये अपने जो डायरेक्टर है, ही इज पार्ट ऑफ इस्कॉन एंड इस्कॉन प्लेड अ रोल इन दिस मूवी एज वेल. आई थिंक प्रमोशन में या दे गॉट सम सपोर्ट. Yeah. सो मे बी उनको अपीस करने के लिए शायद ये सीन इंक्लूड किया हो, बिकॉज इट वेरी मच फेल्ट लाइक दैट. वो जो पूरा मोमेंट था ना जिसमें सारे असुर नाचते नाचते जा रहे हैं, इट फेल्ट वेरी मच लाइक दैट. Maybe. One more scene, again, visually they have conveyed, is that Hiranyaksh, विष्णु भगवान का एक स्टैचू होता है, and then he sort of beheads the statue and then takes the yes. garland और वो अपने को पहना देता है खुद को. Again, visually just conveying that what he wants to eventually become, right? So जो focus होता है ना, the devotion and the focus that we talk about when we talk about Hiranyakashyap, I see that waver only when he gains all the powers. जो उसको boon मिलता है, after that immediately he turns to Hiranyaksh only. उसका पूरा जो वो चला जाता है फॉर मी, कि जो उसका फोकस था, जो उसका, बिकॉज ही गेन्स दैट गॉड कॉम्प्लेक्स ना, गॉड कॉम्प्लेक्स इज व्हाट ही गेन्स वहाँ पे उस टाइम. अरे तो बिकॉज उसके अकॉर्डिंगली ही गॉट व्हाट ही वांटेड एंड ही न्यू कि ही कैन नेवर बी स्लेन. क्योंकि वो बोलता है ना कि मेरे को दिन में भी रात में ना, दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर. सो अकॉर्डिंग टू हिम ही हैड अ फूल प्रूफ बून, विच टू सम एक्सटेंट येस, बट वही है ना, लूप होल तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है. एक बहुत आई एम टेकन बैक टू अ कोट. एक तो आई एम सो सरप्राइज्ड, कंग फू पांडा इज सो कोटेबल एज अ फिल्म. सो उगवे बोलता है कि वन ऑफन मीट्स हिज डेस्टिनी ऑन द रोड ही टेक्स टू अवॉइड इट. yes. एट सच अ गुड कोट कहीं फिट कर सकते हैं, और ये सब रिच स्टोरी टेलिंग है यार.
तो ये तो वही बात होगी ना, वोल्डेमॉर्ट वही तो है, वोल्डेमॉर्ट हर्ड द प्रोफेसी कि दिस चाइल्ड विल राइज टू डिफीट हिम, ही वेंट टू अनअलाइव हैरीज पेरेंट्स एंड ही क्रिएटेड हिज वर्स्ट एनिमी. It's also the same with Kans. हाँ, कंस एग्जैक्टली, कंस कंस So- तो सेम ही है, so वो many- so वोल्डेमॉर्ट many- का ही yeah, so many of the same stories. वो वोल्डेमॉर्ट का वर्स वर्जन है, वो तो लिटरली अपने 7 नेफ्यूज एंड नीसेस को खत्म किया था उसने. It is the same story of how Zeus was born. Zeus के पहले भी बहुत सारे बच्चों को मारा था till Zeus was saved. And it's the same story. Zeus and Krishna same. Parallels ही है, Same. derivatives ही है. मैं तो ये भी, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, आई मीन यू नेवर नो, मे बी इट्स द सेम स्टोरी एंड बिकॉज इट वॉज इन अ फार ऑफ लैंड दे मे बी रिमेंबर्ड इट डिफरेंटली. No, yeah, so these things when travel तो करते थे ना लोग उस टाइम पे, so they picked up these tales and then they went and then वही, because Greek mythology जो है it is very comparatively modern, जो अपना है उससे, तो अपना जो हिस्ट्री है उससे, राइट. एक चीज मैंने लिखी थी, जैसे मेरे नोट, वरा अवतार इज लाइक द ओजी वन पंच मैन. जस्ट ओह यस. व्हाट अ सीन है, एक पंच में पूरा डन. दे लाइक मजे क्यों ले रहे हो यार तुम, मारो उसको. हाँ, वो लिटरली, वो मैंने उसके सबटाइटल्स देखे थे, ब्रह्मा इज लाइक कि प्लीज स्टॉप प्लेइंग विथ हिम, सेव अस एंड मेक जस्ट फिनिश हिम एंड रिड अस ऑफ आवर एंजाइटी. लाइक ब्रह्मा इज सो एंग्जियस कि अरे खत्म करो यार इसको जल्दी. हाँ, तो वो वन पंच मैन बने थे, खत्म करो इसको यार. हाँ, क्योंकि भाई जब हिरण्याक्ष को तो लिटरली ऐसा पता, आई डोंट नो, आई मीन ऑफ कोर्स अगर वो पहले ही खत्म कर देते तो उनको भी लगता ना कि मैंने अवतार लिया, थोड़ा तो करने थे मेरे को कुछ. एग्जैक्टली. अवतार लेके आया मैं क्या आऊं खत्म करूं जाऊं, तो मैं आया ही क्यों, थोड़ा रहने दो मेरे को. यस. But it is fascinating, like, you know, the way Vishnu also designs all his avatars. It's like there is a lot of thought put into it, that okay, he emerged out of Brahma's nostril and then he grows and becomes this massive creature and magnificent creature with superpowers. I mean, Vishnu is a very fascinating character and I've always been drawn to that character since I सभी read यार, comics. मेरे को तो सभी लगते हैं सब फैसिनेटिंग कैरेक्टर. मुझे तो प्रहलाद भी बहुत फैसिनेटिंग लगता है, बिकॉज आई डाइव्ड इनटू व्हाट हैपेंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस. व्हाट हैपेंड टू प्रहलाद, आई डिड डाइव इनटू दैट, बिकॉज मुझे ये सब थ्रेड्स है ना, मेरे को बहुत इनकम्प्लीट लगती है. लाइक सेम थिंग विद we were never told what happened with Eklavya after his thumb was cut off, right? And because he has a story, वो वहाँ थोड़ी मर गया था, उसका भी आगे कुछ. So same thing, but Prahlad went on to rule the kingdom properly, Rule the and kingdom, then वो सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था उसने उसके बाद. He gave it to his son and then he became like a sage or something, वो पूरा कर गया था. But then he created such a great legacy कि आज भी his name is taken as like a example. Yeah, so I mean, look at what this movie has. See, you cannot, I mean, you can be an atheist or you can believe कि ये सब चीज़ें superstition है, जो भी है, but if you look at it from this kind of perspective, जैसे नरसिम्हा बोलते हैं कि युग युग तक तुम्हारे को कोई भूलेगा नहीं. Look at what is happening right now But because dude, of this movie. I am an atheist. But again, all of this is so fascinating. यार मजा आती है पढ़ने. No, but look at this कि what Lord Narasimha at that time said, it is coming true. Like, people are again reminded of Prahlad's devotion through this movie and we are actually feeling it. I mean, this movie in all, this should not have worked. या इसमें एनिमेशन अच्छा नहीं है, इसमें बजट लो बजट है, 6 करोड़ की मूवी है, इट रिलीज्ड विदाउट एनी फैनफेयर, विदाउट राइटिंग एनी इश्यूज है, प्रमोशन. मार्केट्स खराब है, उस टाइम पे रिलीज हुई है. हाँ, अब बारिश के टाइम में रिलीज हुई है. इस टाइम में यूजुअली बोलते कि मूवीज चलती नहीं है. इट केम लिटरली अ वीक आफ्टर दैट. सैयारा, पूरा सैयारा का वो चल पड़ा था, वेव चल पड़ा था, और अभी अगले 2 हफ्तों में वो आने वाली है, कूली और वॉर आने वाली है. तो इसके बीच में दे रिलीज्ड अ मूवी एंड इट हैज फैंटास्टिक 4 के साथ रिलीज हुई है ये. I'll do you one better. This is a bad example of a brother and a sister, and रक्षाबंधन के पहले रिलीज किए लोग. रक्षाबंधन के पहले रिलीज किया, एग्जैक्टली. मैं तो कहता हूँ होली में रिलीज करते तो चलो एक सेंस भी बनता. तो भी हाँ. हाँ, तो ये अभी रिलीज हुई है. इन दिस लिटरली हैड एन अपहिल बैटल कि भाई ये मूवी दिस शुड हैव बीन अ फ्लॉप एंड दिस हैज इमर्ज्ड एज द सक्सेस. मैं कल देखने गया था शाम के 4 बजे का शो.
हाउसफुल था, पूरी फैमिली ऑडियंस बैठी हुई थी मेरे साथ. मैंने कह रहा हूँ तुम लोगों को काम नहीं है क्या? मूवी देखने आयो शाम के 4 बजे वीकडे. भाई इम्पैक्ट है यार. साहब. सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रू ब्लॉकबस्टर. लाइक नो मार्केटिंग, नथिंग, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे चल रही है ये मूवी. Yeah, in a way, this movie is Prahlad. Yes, exactly. So this is what I'm saying, that okay, what Lord Narsimha had said, it is coming true, that even if some time passes and people forget, you will get reminded with such force. This movie has become a force, that okay, this Prahlad story is come out alive, and this is going to start this conversation and inspire a lot of the next generation, and it's a good thing. मैं पता देख रहा था वो जो जब लॉर्ड नरसिम्हा का इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद एक गाना बजता है ना, नर 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 नरसिम्हा नमो. एक बच्चा, छोटा बच्चा था, 5 साल का बच्चा, गाना खत्म हुआ उसके बाद वो गाना गा रहा था वो बच्चा. Nice. सो इट्स लिटरली ही वॉज 5 years old, दैट चाइल्ड ही वॉज. मैं पहले तो सोच रहा था कि भाई तुम बच्चे को ये मूवी क्यों दिखाने लाए हो, कि यहाँ पे तो पूरी इंटेस्टाइन कट रही हैं, खून खराबा हो रहा है, देर इज़ नो पेरेंटल गाइडेंस एंड नो ये हो रहा है. एंड मैं सोच रहा था कि बच्चों को ले आए, एंड दैट किड इज़ एन्जॉइंग. मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा है. सी आई मीन, लाइक आई एम सेइंग दैट वायलेंस, आई एम हैप्पी दैट they have treated this movie in an animation format, so वो violence बहुत ज़्यादा गोरी नहीं लग रहा. of course that आँख जब निकल रहा था वो वाला सीन बहुत गोरी था, but still it is there is a certain artistic element to the violence also, Yeah. which is why it does not feel very brutal, or I mean of course it is brutal, but it does not feel icky. जैसे gore फाइनल डेस्टिनेशन जैसे है ना, फाइनल डेस्टिनेशन में तो सब कट रहा है Doesn't पट रहा है, feel like वैसा that. नहीं है ये. Yeah, so which is why I feel that okay, maybe the children can be exposed to this. And also of course this is meant to be a children's movie, because Prahlad is a literal child, and if you are if children are getting influenced by Prahlad, then it is a good thing. But please बच्चों, छत से वत से मत कूद जाना ये सोच के कि विष्णु जी आके बचाएंगे. ये मत करना. तो आई होप द पेरेंट्स आर एजुकेटिंग देम कि ये सब नहीं करना. Yeah. एक But yeah, एक, overall- एक स्टोरी टेलिंग एलिमेंट है that I find really like curses in this universe are basically foreshadowing. Yeah. Every tale you listen to, curses are foreshadowing. It will come true at some point, but it will come true in like the most epic way possible. Like you will not predict See- कब आएगा ये. Okay, so I will tell you one thing, that basically कर्स हो या बून हो या जो कुछ भी हो, कर्स इज जस्ट दैट योर लाइफ इज गोइंग टू बी हार्डर. Your journey life, you are going to face a lot of hardships, and it is going to test you a lot. That is what a curse is supposed to be. A boon is like, तुमको boon मिल गया तो your life will become somewhat easier. It's not जैसे कि because of what you are doing you will get some special abilities, and how you end up using it, that determines your ultimate fate. जैसे कि रावण को भी boon मिला था, हिरण्यकश्यप को भी बून मिला था, होलिका को मिला था. होलिका को मिला था. सो इफ दे वांटेड, इफ दे हैड चेंज्ड देयर धर्म, इफ दे हैड चेंज्ड देयर पाथ एंड एक्चुअली यूज्ड देयर बून्स फॉर गुड, दे वुड हैव lived a good life, and they did not have, I mean उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, उनको they did not need to worry any, but because उन लोगों ने गलत काम किया तो उनको उसके अकॉर्डिंगली फल मिला. Yeah. सो दैट इज अल्टीमेटली द थिंग. तो कर्स से ना डरना नहीं चाहिए. इफ समवन कर्सेस यू, दैट मीन्स कि तुमको बस हार्डशिप्स झेलनी है, एंड हार्डशिप्स का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ खराब है. लुक एट व्हाट प्रहलाद हैड टू एंड्योर. Yes. But ultimately, despite all that, he managed to do something amazing. And the hardships of Prahlad was not even his fault. वो तो because he was born in this particular community. I mean, if he was born to Devta, his devotion would have been rewarded. His devotion would have a support system. Yeah.
So this is Prahlad is like Snyder Superman, but he knows who he is. पूरी उसका पूरा कम्युनिटी उसके अगेंस्ट है, बट ही इज वेरी स्ट्रांग. उसको पता है कि नहीं नहीं मैं तो जो हूँ मैं सही हूँ. Yeah. So that is wisdom. That is what that is the fascinating thing. That is the fascinating tale. And as I said, the point of this movie is that it doesn't matter where you are born. It doesn't matter who you are or what your parentage is. If you truly want to find God, you will. And the God will come down to you if you are true in your devotion. So this is a very good morality lesson. Very good morality lesson. Yeah. So yeah, if you have anything else, you can. No, I'm done. I enjoyed the film. Sure, it comes with flaws. Animation I think they'll fix it because they'll have a lot more budget now, and then they'll understand कि I क्या क्या don't. गड़बड़ थी. यार I still don't know whether they'll be able to fix it. I hope they fix it because ऐसे ही graphics में ना मैं नहीं देख सकता. It pulls me out. I mean, I don't mind Hiranyakashyap's look because वो राक्षस है. राक्षस don't look like humans. So वो heightened है तो समझ में आता है. But when you have to and the next movie is about Mahavatar Parshuram. Parshuram, he's an offspring of a Brahman and a Kshatriya. So it is going to be full bloodbath. वो तो मैसेकर ही है. वो कहानी ही उनकी मैसेकर के बारे में ही है. ही इज दैट अवतार हु बेसिकली एंडेड ऑल द करप्शन एंड स्टार्टेड अ न्यू युग. त्रेता युग शुरू किया था उन्होंने. उन्होंने सतयुग खत्म करके त्रेता युग शुरू किया था. So I don't know. We can just hope, but with more money, hopefully he can tap into that better technology and वो budget allocation ना करना पड़े उसमें. जैसे वो था ना, जैसे ऑल द पोर्शंस यू सॉ ऑफ लॉर्ड विष्णु, मैं चाहता हूँ कि वैसा एटलीस्ट वैसा भी हो तो चलेगा. Yes. But the only thing is like I hope they understand how adaptations work. ठीक है कि एक स्टोरी टेलिंग मीडियम चेंज हो गया है. आप एक विष्णु पुराण से उसको यहाँ पे ले आए हो. अंडरस्टैंड दैट दिस स्टिक टू अ थीम. Okay. No, but don't worry, परशुराम की स्टोरी में परशुराम इज द सेंट्रल कैरेक्टर और इनका वी विल बी फॉलोइंग हिम. इट इज गोइंग टू बी मोर एक्शन ओरिएंटेड. सो इट इज गोइंग टू बी मोर लाइक व्हाट वी सॉ विथ हिरण्यकश्यप एंड व्हाट वी सॉ विथ व्हेन नरसिम्हा कम्स. सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट. प्रोग्रेशन होने वाला है. इट इज क्योंकि परशुराम्स लाइफ इज, आई मीन ही इज दैट, ही इज द ओजी, क्या बोलूँ मैं, दैट गाय. Anger, driven by anger. He is the OG angry young man. So we are going to witness that, and it is fascinating that we've never seen Parshuram represented on screen or in any story. Very fascinating. So it is good that they are tackling that the very next movie. और फिर वो चलेगी, वो गारंटी चलेगी. चलनी चाहिए क्योंकि it has all the elements that can appeal to a younger audience. Violence, action, and brutal action because his weapon is an axe. Yeah. So it is going to be fascinating. And also ये शेकी कैम थोड़ा छोड़ दें तो बेटर रहेगा क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये एक्शन में बहुत कट्स थे इधर उधर, फास्ट कट्स. वो थोड़ा सा मेरे को इट वाज पुलिंग मी आउट कि इवन बिकॉज इट्स एन एनिमेटेड मीडियम, व्हाई डू यू नीड फास्ट कट्स. Yeah, कुछ जगह पे आई लाइक द शॉर्ट चॉइस दे डिड. एक तो मुझे POV शॉट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स बहुत अच्छे लगे. हिरण्यकश्यप जब थ्रोन पे होता है ना, वो उसका शॉट नीचे से पूरा लेते हैं वो प्रॉपरली सो दैट ही शोन टू बी लार्जर देन लाइफ इन दैट मोमेंट. अगेन सो उन लोग अगेन दिस क्राफ्ट स्ट्रॉन्ग है. अश्विन कुमार का क्राफ्ट स्ट्रॉन्ग है. उसको पता है कहाँ कौन सा शॉट कहाँ लेना है. दैट आई लाइक. बट टू हाँ देखो, इम्प्रूवमेंट चाहिए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट चाहिए. वी लव what the effort which you've put. Of course, another caveat is now he doesn't have 5 years. He has 2 years because they've already released the next movie का डेट 2027 में आने वाली है परशुराम. So 2 साल ही हैं. 2 साल में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी. ऑफ कोर्स नाउ दे विल गेट मोर मनी बिकॉज इतने पैसे कमा लिए हैं इस मूवी ने, तो दे विल गेट द मोर डोर्स विल बी ओपनड अप टू देम, मोर टेक्नोलॉजी कैन कम टू देम. सो आई होप they put it to good use, and I trust Ashwin Kumar because I've seen what he's capable of in this particular movie. So I know that okay, he knows the craft. So that is a very good sign for me that of course I can
definitely pay him the money. Try to make it on IMAX, bring it to IMAX, because that will give us the good visuals. अब कर सकते हैं. हाँ, अब कर रहे हैं, पहले नहीं. मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर उस एस्पेक्ट रेशियो में रिलीज करेंगे तो इट विल हेल्प ग्रैंडियर सेल करेगा. एंड वही थोड़ा सा अगर ये इम्प्रूवमेंट्स करेंगे तो दिस कैन बी अ ग्रेट सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड होम ग्रोन सिनेमैटिक यूनिवर्स. Yeah. That is what we need right now, because we need something. And we've seen that both Marvel and DC are struggling. Superman भी इतनी लोगों को अच्छी नहीं लगी है, even though it is decent, it has earned decently. Fantastic Four, even though people are saying it's not a bad movie, but इतनी चली नहीं है. मेरा तो मन भी नहीं कर रहा देखने का, अभी तक देखा ही नहीं. अरे ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब, these are all derivatives of different tales from different mythologies and religions and everything. ये Superman story is literally what happened with Krishna. Okay, Lord Krishna. वो go from one Kind place of. to the other, the problem of belonging, all of that. Again, it's just inspired from that. हाँ, हो सकता. अरे ठीक है, सुपरमैन तो मैं क्या ही बोलूँ, सुपरमैन तो अब खत्म. उसमें जो चीज़ करनी थी दे हैव डन इट, सो वो तो अलग है. बट मेरे लिए वही है कि इट्स गुड नाउ आवर स्टोरीज आर गेटिंग रिप्रेजेंटेड एंड आई एम एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर. आई होप दैट more creators start for tapping into these stories, and I'm very happy that at least the right wing have matured enough right now to accept these stories in Yeah. this format. Yeah. वरना जैसे कि वो राम, वो जो लेजेंड ऑफ प्रिंस राम को बैन करने की बातें कर रहे थे ना उस टाइम पे, कि हमारे भगवान को कार्टून बना दिया. मैंने कहा तुम इग्नोरेंट ही रहोगे, इसलिए तुमको विलनाइज किया था लोगों ने. अब एटलीस्ट द राइट विंग हैज एक्सेप्टेड कि दे नो, दे रियलाइज दैट दीज आर इंपॉर्टेंट मीडियम्स एंड देयर स्टोरीज नीड टू बी टोल्ड थ्रू दीज लेंसेज टू रीच अ यंगर जनरेशन. एंड बिकॉज दे नीड यंगर जनरेशंस को अट्रैक्ट नहीं करोगे तो तुमको मिलेंगे ऐसे सुचारिता जैसे लोग ही मिलेंगे. She'll never review this. Of course she won't review this, because वो रिव्यू करेगी तो वो इंट्रोस्पेक्शन बोलेगी, अरे नरसिम्हा ने इंट्रोस्पेक्ट क्यों नहीं किया. वो यही बोलेगी कि अरे नेचर ऑफ वॉर के बारे में लॉर्ड नरसिम्हा एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे तो खून चल रहा है. यही करेगी वो बैठ के. Yeah. अरे we could go on and on about what Sucharita would have said about this film. सुचारिता को शुक्राचार्य मिले ना, शुक्राचार्य जैसे गुरु मिले ना, इसलिए तो शी वाज गाइडेड इन दैट पर्टिकुलर थिंग. हाँ, उसको धड़क 2 बड़ी पसंद आई थी ना. धड़क 2 she liked, yeah. तो ऑफ कोर्स उसको धड़क. I mean, I also enjoyed धड़क 2, but for different reasons. Not for the caste politics it does. Yeah. She would enjoy it for the caste politics. Yeah. इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल देसी डीप डाइव को सब्सक्राइब करें. तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद. राम राम और शुभ रात्रि. हाँ, बाय बोल दिया तूने, बताओ.